Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Sri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode where you have written into us about what is troubling you, about what is happening in your life, and I will take those emails and Premji will help you understand and support you as to how you can make your life better. So let's find out who sent in the first email for today. और प्रेमजी पहली email जो आई है, this is from Mr. SS. His date of birth is August 27, 2002. Place of birth is California. Time of birth is about 5:35 in the evening. He says his son has a lot of ups and downs in school. He studies hard, but the results really don't show it. He would like to know what does the future hold for his son, though he's very smart, but he does not want to try hard enough. Any recommendations from you would be really delightful for them. देखिए मिस्टर एस अगर आप 27 अगस्त 2002 इनका क्लोविस कैलिफोर्निया 5:35 PM का शाम का बर्थ है. इज़ ए कैप्रिकॉन राइजिंग मून साइन जो है इनका वो सजिटेरियस है, मकर लगन है और धनु राशि है इनकी. मकर लगन का लॉर्ड है शनि. सैटर्न तो इनकी जन्मपत्री में इनके 5th हाउस में बैठा, विच इज़ अ वेरी पावरफुल प्लैनेट. 5th हाउस में एजुकेशन में हो तो सैटर्न इज़ कनेक्टेड टू फाइनेंस, साइंस एंड टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा रहता है. एजुकेशन जो है वो हमारे को जुपिटर देता है. गुरु जो है शिक्षा का लॉर्ड है, गुरुकुल जहाँ पे हम पढ़ते भी हैं. वो इनकी पत्रिका में राहु के साथ बैठा हुआ है. राहु के साथ गुरु बैठ जाए तो गुरु राहु चंडाल योग बन जाता है. आप जितने एफर्ट लगाओगे उतनी उसकी आउटकम आपको दिखेगी नहीं. और दशा भी इनको सूरज की स्टार्ट हो गई है. अब सूरज शनि का शत्रु है, शनि कुंडली का लॉर्ड है. तो सोलर इक्लिप्स भी आ गया और गुरु राहु चंडाल योग भी आ गया. तो जिसकी वजह से हम करियर को अचीव तो कर पाते हैं, लेकिन वो जैसे इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 1 out of 10 स्केल में 9 और 10, वी आर सीइंग ओनली 5 और 6. Right. और फिर अगर हम जॉब में भी जाएंगे तो हमारे एफर्ट काउंट नहीं होंगे. जितनी हम मेहनत करेंगे वो मिलेगा नहीं उतना फल. और जिसकी वजह से फिर हम काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली इनका चंडाल योग है और ये सूर्य दशा जो है 2031 अप्रैल तक है, वो थोड़ी ठीक नहीं है इनके लिए. जी. So Prem ji, any remedies or solutions for him? देखिए एक तो इनको जो है बेसिकली जुपिटर राहु को रेक्टिफाई करना चाहिए. उसके लिए इनको जो है होमलेस शेल्टर में खाना जो है वो डोनेट करते रहना चाहिए. साल में 2 बार थर्सडे के दिन. एक ब्लू सफ़ायर पहन के रखें 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में. उसको सैटरडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे इनका जो है लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. और सूरज की दशा चल रही है, सूर्य शनि सन इज आइज, तो इनको ब्लाइंड लोगों को भी हेल्प करते रहना चाहिए. जहाँ पे भी आई सर्जरी की जाती है तो साल में एक बार वहाँ पे डोनेशन दे दें. और सैटरडे के दिन कॉपर वेसल में पानी भर लें और संडे के दिन उसमें अपना चेहरा दे के शुगर डाल के उसको सूर्य नमस्कार भी करें. तो उससे भी काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा. Thank you, Premji. So, like Premji is saying that yes, your son is going through this roller coaster with a lot of children go through, but he will come out of it. He needs to start wearing a neelam, which will also support him in, his focusing, for him to be attentive at school, and things should turn around for him. Besides the other remedies that Premji has mentioned for you and him to do. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर मोमेंटम बिल्ड होगा. करियर में तो थोड़ा अपना जो इनिशिएटिव है इनको अर्ली लेना चाहिए. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलेगी वो आपको. बट अवॉइड करना चाहिए, आपको रश नहीं करना चाहिए किसी भी डिसीजन को, खास करके मिड वीक के अंदर. फिज़िकल एनर्जी आप लोगों की काफ़ी हाई रहेगी, तो उसको चैनल करिएगा जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिले.
वीकेंड से आपकी ये जो वीकेंड्स ब्रिंग थोड़ा सा सेंस ऑफ अचीवमेंट, तो आप काफ़ी पॉजिटिव भी महसूस करेंगे। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो आपका जो फोकस है वो शिफ्ट करेगा आपकी पर्सनल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो सेल्फ ग्रोथ है उसके ऊपर। एक्सपेंसेस आप लोगों के बढ़ जाएंगे, लेकिन बजट करिएगा केयरफुली। रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, काफ़ी थोड़ी लिसनिंग की भी ज़रूरत है, कई बार पार्टनर को सुनना भी पड़ता है। काम में आप थोड़ा फील स्लो करेंगे, लेकिन वो स्टडी रहेगा। सेल्फ रियलाइजेशन है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, जिससे आप अपनी डायरेक्शन को रीसेट करेंगे। Gemini. जमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों के लिए एक क्वाइटर फेस है। प्लान ज़्यादा करिएगा, एक्ट लेस करिएगा इस वीक के अंदर। हिडन इश्यूज जो हैं काम के ऊपर थोड़े से सरफेस कर सकते हैं। पैसे को बिल्कुल भी लैंड मत करिएगा, खास करके इस वीक के अंदर। रेस्ट और जो मेंटल क्लैरिटी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीकेंड में थोड़ी सी आपको कहीं से पॉजिटिव शिफ्ट या अच्छी खबर भी आएगी। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो सोशल कनेक्शंस हैं उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। करियर प्रोग्रेस जो है वो टीम वर्क से आपको मिलेगी। फाइनेंशियल गेन्स पॉसिबल है थ्रू नेटवर्किंग। और आपको थोड़ा बैलेंस बना के रखना है इमोशनली। जो गोल हैं वो आपकी लाइफ में, आपके जो भी आपके सपने हैं वो काफ़ी क्लोज हैं रियलिटी के लिए। और प्रेम जी अगली मिल जाई है. This is from Mr. SPS. His date of birth is August 18, 1971. Place of birth is New Delhi. Time of birth is about 2:20 in the evening. He's originally from New Delhi, but he's now living in Canada. His question is related to the job that he has and settlement issues in Canada. He wants your advice as to understand what will the future hold for him. देखिए मिस्टर SPS, अगर आप 18 अगस्त 71, न्यू दिल्ली इंडिया, इनका 2:20 PM का बर्थ है। इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है और इनका मून साइन जो है वो कैंसर है। वृश्चिक लगन है और कर्क राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड होता है मंगल। राशि का जो लॉर्ड है वो इनका चंद्र है। एंड इनको जो है अभी दशा शुक्र की चल रही है, और शुक्र में बेसिकली राहु का ट्रांजिट है। और राहु जो है इनको बाहर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और आगे शुक्र गुरु में एंटर कर जाएगा जो इस साल सितंबर में। तो इस साल सितंबर के बाद से इनकी जो चेंज ऑफ कंट्री, जो सेटलमेंट है वो कनाडा में बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि लॉन्ग रन में इनका जो रहने का जो है वो जन्मभूमि भारत है, और कर्म भूमि उनकी जो है विदेश में जुड़ी हुई है। तो जो लेटर पार्ट ऑफ इनका जो लाइफ का है, क्योंकि 50 के बाद आपको शनि और गुरु का जो इम्पैक्ट है लाइफ में बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा. तो जुपिटर इनका लगन में बैठा हुआ है, तो इनके लिए काफ़ी जो है पॉजिटिव डिसीजन रहेगा टू स्टे बेसिकली, अगर ये ओवरसीज़ में अपने आप को सेटल करते हैं। और ख़ास करके सितंबर के बाद से इनका जो टाइम है वो काफ़ी स्ट्रांग है फॉर द सेटलमेंट। So, Premji, what would you recommend as remedies for him? एक इनको पुखराज पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, Mm-hmm. जिससे इनका जो है गुरु स्ट्रांग रहे। इंडेक्स फिंगर में उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में गोल्ड में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड को बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो लगन में ही बैठा हुआ है मंगल की राशि में। और जन्मपत्री में इनके चंद्र केतु है, तो लूनर एक्लिप्स है। तो कई बार हम डिसीजन लेने में थोड़ा इमोशनली कई बार बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत रहती है। तो लॉर्ड शिवा की पूजा करते रहना चाहिए। शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाए मंडे के दिन, उपवास करें, एक टाइम खाना खाएं। अगर उपवास नहीं कर सकते तो स्टे वेजिटेरियन रहना चाहिए। हनुमान जी इनके इष्ट देव हैं, तो हनुमान चालीसा इनको जो है मस्ट ट्यूसडे और सैटरडे के दिन करना चाहिए। तो उससे काफ़ी बड़ी पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ मिलेगी लाइफ के अंदर इनको। Thank you, Premji. So, like Premji is saying that yes, a lot of positivity is coming your way. You just need to be very patient. Things will work around for you, and the settlement will go in your favor. You need to start wearing a pukhraj, making sure it's an untreated, unheated, good quality, pure stone. There's a small mantra that you need to do with it. On Thursday, you need to stay vegetarian, along with the other remedies that Premji has mentioned to you. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो आपका जो करियर फोकस है वो काफ़ी
इम्पॉर्टेंट रहेगा इस वीक के अंदर। इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सामने से आएंगी। अच्छा। रिकग्निशन पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अवॉइड करिएगा आपका अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, खास करके अथॉरिटी फिगर्स के साथ। फाइनेंशियली जो है आप इम्प्रूव करेंगे स्लोली। डिसीजन जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, खास करके जो आपकी ग्रोथ है। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों की डिज़ायर है टू लर्न और एक्सप्लोर समथिंग जो इस वीक के अंदर होंगी, जिसकी वजह से आप ग्रो भी करेंगे। ट्रैवल और प्लानिंग जो है इस वीक के अंदर पॉसिबल है। काम के ऊपर आप चीज़ें मैनेजेबल फील करेंगे, लेकिन थोड़ी सी वो जो है स्टडी भी रहेंगी। बट किसी चीज़ को भी ओवर एनालाइज मत करिएगा, अवॉइड करिएगा अपॉर्चुनिटीज़ को, ज़्यादा सोचिएगा मत, जो भी है उसको ग्रैब करिएगा। मेंटर और किसी की एडवाइस से आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसके ऊपर थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत है, खास करके जो टैक्सेस हैं, जो कर्जे हैं, जो भी आपने पैसे को शेयर किया है। इमोशनली आप काफ़ी जो है इंटेंसिव वो रहेंगे, परेशान रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। बट अवॉइड करिएगा जो किसी तरह की भी जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं इस वीक के अंदर। काम के ऊपर आप स्टेबल रहेंगे, बट लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको काम करना चाहिए। कोई आपका कोई छुपा हुआ जो सच है वो सामने भी आ सकता है इस वीक के अंदर। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो रिलेशनशिप है वो खास करके सेंटर स्टेज रहेगा। इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन से क्लैरिटी आएगी। काम के में ऊपर जो पार्टनरशिप्स हैं आपकी इम्प्रूव करेंगी। बट अवॉइड करिएगा जो भी आप ओवरली जो चीज़ों को, अपने आप को कंट्रोल मत होने दीजिएगा इस वीक के अंदर। बैलेंस रखिएगा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और प्रेम जी अगली मिल जाई है. दिस इज फ्रॉम Mr. MC. His date of birth is November 2nd, 1975. Place of birth is Fiji Islands, and time of birth is about 7 in the evening. Has moved to Canada in 1998. His life has been in turmoil ever since, with loans, debts, credit, and no prosperity or wellness at all. He wants your help and guidance to know how long will this situation stay for him, or is there a light for him in the end of the tunnel? And he wants your help and remedies. देखिए मिस्टर एमसी, अगर आप नवंबर 2 1975, इनका नौसूरी फिजी आइलैंड, इनका 7 PM का बर्थ है। इनका एरीज राइजिंग है और इनका जो मून साइन जो है वो वर्गो है। मेष लगन है और कन्या राशि है इनकी। मेष लगन का जो लॉर्ड होता है वो मंगल है। राशि का जो लॉर्ड है बुध है इनका। 2014 से इनको शनि की दशा चल रही है, जो कि 2033 तक रहने वाली है। उससे पहले इनका जो 98 में जब ये गुरु दशा में थे, जब इन्होंने मूव किया, बृहस्पति 12th हाउस में है तो 12वें स्थान में मीन राशि में बैठा है, तो जो इंडिकेट करता है कि बेसिकली ये जन्म कहीं लेंगे और रहेंगे कहीं। और 12वां स्थान जो है वो खर्चे का भी है बेसिकली। और जन्म पत्री में जो इनका जो सक्सेस लॉर्ड है वो है सूरज है, क्योंकि सन सपोर्ट करता है मंगल को। वो राहु और बुध के साथ 7th हाउस में बैठा है, तो सूर्य ग्रहण है जन्म पत्री के अंदर, तो जिसकी वजह से हमारे को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। एंड ऊपर से इनको शनि की दशा चल रही है और सैटर्न भी जो है जन्म पत्री में कर्क राशि में बैठा है। तो चंद्र की राशि में शनि जाए तो विष योग क्रिएट करता है। तो विष योग में क्या है कि पॉइजन, तो इट मीन्स आप मेंटली और फाइनेंशियली बेसिकली कर्जे में रहेंगे हमेशा। खर्चे के घर में गुरु बैठ गया, इनकम हुआ का लॉर्ड इक्लिप्स्ड है, Right. तो इसीलिए पैसा जो आया और निकल गया, यह हमेशा कोई ना कोई कर्जा खड़ा रहता है। So then, Premji, how can he get out of this debt, and any remedies for him? देखिए, एक तो इनको जो है अपने सोलर इक्लिप्स को रेक्टिफाई करना चाहिए। Ji. ब्लाइंड लोगों को ये है डोनेशन दें, किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में ये जाएं, जहाँ पे भी आई सर्जरी की जाती है वहाँ पे इनको डोनेशन देते रहना चाहिए वंस ईयर। जैसे ही किसी की आंख में रोशनी आएगी, वैसे ही इनकी लाइफ में भी Right. इनका जो सोलर इक्लिप्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक रूबी पहन के रखें 5 to 6 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में, गोल्ड में, उसको जो है संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, देन कंटिन्यू पहन के रखना चाहिए इनको हमेशा। और शनि की दशा चल रही है, चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन है,
तो लॉर्ड शिवा की पूजा करें, मंडे के दिन शिवलिंग पे मिल्क चढ़ाएँ Hmm. और एवरीडे इनको ये करते रहना चाहिए। मंडे के दिन ख़ास करके वेजिटेरियन रहें, अगर ये फ़ास्ट कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा। 12वें स्थान में गुरु है, तो खर्चे को स्टॉप करने के लिए, डेट्स को कम करने के लिए, जितना इनका वज़न है उसका 1/10 जो है, वो चने की दाल ट्वाइस अ ईयर किसी टेंपल में या किसी भी धर्म स्थान में उसको डोनेट करते रहना चाहिए। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that you need to start wearing a ruby. You know, there's a small mantra that you need to do. You need to be vegetarian on that day. Along with that, you need to do certain donations that Premji's mentioned, 1/10 weight of the dal that you need to donate every year, and making sure you're vegetarian when you're doing that remedy. And things should work out for you. Things look a little tough for you, but eventually there is a light happening for you, and you will feel much better about your finances, your health, and everything surrounding you. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Prem ji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Prem ji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आपको अपना जो फ़ोकस है अपनी रूटीन चीज़ों पे करना चाहिए, हेल्थ एंड डेली वर्क के ऊपर। प्रोडक्टिविटी जो है आप लोगों की इम्प्रूव करेगी, लेकिन थोड़ा-सा आप लोगों को डिसिप्लिन भी चाहिए। माइनर हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंसेस आप लोगों के रिमेन स्टेबल रहेंगे। कोई नई हैबिट है जो आपको लॉन्ग टर्म जो है जिससे आपको आपको बेनिफिट भी हो सकता है। Capricorn. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों की जो क्रिएटिव एनर्जी है वो काफ़ी राइज़ करेगी। ये अच्छा टाइम है नए आइडियाज़ के लिए। रोमांस और जो पर्सनल जॉय है वो आप लोगों का बढ़ जाएगा। बट अवॉइड करिएगा ओवर स्पेंडिंग, ख़ास करके किसी ज़्यादा मौज मस्ती पे या ओवर स्पेंडिंग या लग्जरी पे नहीं करना चाहिए। काम के ऊपर आप रिमेन स्टडी रहेंगे। फ़न और रिवॉर्ड जो है आपको मोमेंट आपकी इस वीक के अंदर स्टैंड आउट्स भी करेगी। Aquarius. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, होम एंड फैमिली मैटर्स को थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। इमोशनल ग्राउंडिंग जो है इस वीक के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप काम को शायद आप फील सेकेंडरी करेंगे इस वीक के अंदर। थोड़ा से मेजर फाइनेंशियल जो हैं, जो भी आपके जो मेजर जो आप फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। आपके चेंज आएगा, घर की इम्प्रूवमेंट चीज़ों में, आपके कंफर्ट में भी थोड़ी बेटरमेंट आएगी। Pisces. स्पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जो कम्युनिकेशन जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ करेगी। शॉर्ट ट्रिप्स जो बिजी स्केड्यूल्स हैं वो लाइकली रहेंगे। थोड़ा माइंडफुल रहिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आप लोगों की बैलेंस रहेगी। नया आइडिया स्पार्क करेगा जो मोटिवेशन को। Thank you, Premji. You came to the show, you helped all the viewers understand what was going on in their birth chart with the horoscope reading and giving them solutions and remedies. और दोस्तों वक्त आ गया है for Premji and me to take your leave. लेकिन जाने से पहले, like we always remind you, if you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.